Yes, hello to everyone. Uh, Hello and welcome to this new daily news digest session. आज 26 तारीख है 26th of November and 26th of November basically is known for two things, one positive and one negative. The positive thing is we have our National Constitution Day today, but this is also the day in which we solemnly remember the 26/11 attack which happened in 2008 in Mumbai. तो आज का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आई एम विलिंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस डे, बिकॉज इसी दिन हमने अपना संविधान इनैक्ट किया था। और कंसेंसस रिपब्लिक इस पे एक बड़ा अच्छा ओपिनियन पेज में आर्टिकल आया है, लेसन फॉर टुडेज पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। उस पे बात हो रही है। एज वी कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। अब मैं क्यों चाह रहा हूं कि आप लोग इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में देखें, बिकॉज व्हाट समटाइम्स यूपीएससी डज इज वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और जब हम मेंस में आंसर लिखते हैं ना, तो कई बार हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के थॉट, फिलोसफी, उनका सोचने का तरीका, उसके बारे में भी इलेबोरेशन करनी रहती है। तो ये एस्पेक्ट आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा अगर आप इस तरह के स्कॉलरली आर्टिकल्स रीड करेंगे। So today is 26th of November and we are celebrating today the 75th anniversary of the adoption of Constitution in India, because it was on the 26th of November 1949 that India's Constitution was adopted. That is why we are celebrating the 75th anniversary of the same. The contribution of the members of the Constituent Assembly in imagining the future of India through a democratic, consultative, inclusive, and argumentative process is truly inspiring. Have a look at the keywords which they have used in this article: democratic, consultative, inclusive, argumentative. यही सारे keywords आपके answers में भी होने चाहिए. As we commemorate the 75th anniversary, it is important to also celebrate the contribution of the members of the Constituent Assembly. तो बहुत सारे members from all sides of spectrum, they have contributed to enriching our constitution, and we should basically pay homage to these individuals. जैसे सबसे पहला यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिखा हुआ है in his last speech to the Constituent Assembly, which was delivered on 25th of November 1949. He paid tribute to the contribution of the members of the assembly, because it was a constitution which was very, very vast. It was a constitution which was very difficult to come up with, and many people, many ideologies contributed to this constitution. तो बड़ा अच्छा एक कोट यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक द स्टूडेंट्स कैन मेक अ नोट ऑफ दिस कोट। उसके नीचे अंबेडकर अप्रिशिएटेड एंड सेलिब्रेटेड द डिसेंटिंग वॉइसेस, बिकॉज देयर वर रिबेल्स एज वेल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ हेल्दी ऑपोजिशन, तो इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वर मेनी पीपल who constantly voiced their opinion and dissent in order to make sure that the process was very inclusive. Everybody's voice was heard. तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं: मिस्टर कामत, डॉक्टर पी एस देशमुख, मिस्टर सिद्धवा, प्रोफेसर केटी शाह, पंडित एच एन कुंद्रू। ये सारे वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड दे हैव बीन वेरी एक्टिव इन दिस रिगार्ड. The points they raised were mostly ideological. That I was not prepared to accept the suggestions does not diminish the value of their suggestions, nor lessen the service. कितना खूबसूरत कोट है जो स्टूडेंट्स को अपने आंसर के लिए याद रखना चाहिए कि इवन if I did not accept those suggestions, this does not diminish the value of those suggestions, even if they were counterproductive or going against my own ideology. And they do not lessen the service they have rendered to the assembly in leavening its proceedings. But for them, I would not have had the opportunity which I got for expounding the principles underlying the Constitution. So, a healthy opposition, debate, constructive criticism, this is all something which was very much there in the Constituent Assembly, and this needs to be appreciated. आंसर्स लिखते वक्त इस तरह के कोट हमारे आंसर्स को बहुत ज्यादा इनरिच कर देंगे। फिर इसके नीचे इस आर्टिकल में डेटा लिखा हुआ है, जो कि बात कर रहा है कि फिलहाल स्थिति क्या है, एंड हाउ इज इट इन लाइन और एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या हैव वी वेवर्ड समवेयर। तो इसमें लिखा है बिफोर 1990 ईच लोकसभा यूज्ड टू कन्वीन फॉर 550 डेज, और कुछ और डेटा लिखा हुआ है। यू कैन रीड द डेटा, आई थिंक यू शुड मेक नोट ऑफ द डेटा एज वेल। बट फिर जो चैलेंजिंग बात है वो ये है कि द 17th लोकसभा हेल्ड द लोएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स विद 274 days over 5 years. This is very low as a number. The first Lok Sabha sat for 677 days during 1952 to 57. कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि the number of sittings of the Lok Sabha have declined. This is not healthy for a democracy. इसके अलावा बिल्स पास्ड और डिसरप्शन की भी यहाँ पे टाइमिंग्स लिखी है, दे हैव सर्टनली इंक्रीज्ड। जैसे यहाँ लिखा है द 15th लोकसभा लॉस्ट 37% ऑफ इट्स शेड्यूल्ड टाइम टू डिसरप्शंस व्हाइल द 16th लॉस्ट 16%.
The average time spent on union budget discussion declined from 120 hours before 1990 to 35 hours post 1990. तो जितना कम टाइम डेलिब्रेशन और डिस्कशन में होगा, उतना ही हैफजार्डली और एक तरह से जल्दबाजी में बिल्स को पुश थ्रू कर दिया जाए. तो दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड हैबिट विच इज देयर फॉर द लोकसभा. और फिर यहाँ पे और बातें की जा रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स जो थे, दे रिप्रेजेंटेड द मोस्ट डाइवर्स इंटरेस्ट, दे केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और अब सिंसियरिटी और कन्विक्शन के साथ अपना स्टैंड रखते थे. एंड अच्छी बात यह है कि देवर ऑल्सो डोयंस ऑफ लॉ एंड लीगल फ्रेमवर्क. तो उनकी नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग ओवर दीज इश्यूज वाज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. कहीं ना कहीं ये चीज हम दोबारा सीखें और इसका इसको चरितार्थ करने का प्रयास करें. दैट इज व्हाट इज नीडेड. तो इस पे ये आर्टिकल मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज इस आर्टिकल में बड़े अच्छे डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं. प्लस इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है जो आपको हो सकता है किसी स्टैंडर्ड बुक में ना मिले. तो आई थिंक कंसिडरिंग दोज थिंग्स इन टू अकाउंट, दिस इज अ वेरी रिच आर्टिकल विच स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ. With this, I would now like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward. थैंक यू सर। आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले आर्टिकल में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपने अम्बेडकर की जो लाइंस बताई है, बी आर अम्बेडकर की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जैनिज्म बुद्धिज्म भी हमें सेम चीज़ें सिखाता है, दैट वी शुड प्रमोट आवर व्यूज बट एट द सेम टाइम वी शुड एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस ऑफ अदर्स व्यू। तो ये एक काफ़ी अच्छा कोट है जो हम जैनिज्म बुद्धिज्म से भी लेते हैं, सीखते हैं ये चीज़ें। तो ये फिलोसॉफी ऑब्वियसली इसको ऐसे में यूज किया जा सकता है। नाउ नाउ कमिंग टू माय आर्टिकल्स। आज के जो द हिंदू से मैंने आर्टिकल लिए हैं, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट्स दिस न्यू प्रोजेक्ट पेन 2.0 प्रोजेक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है, टू मेक द परमानेंट अकाउंट नंबर पेन नंबर a common business identifier for all digital system of the government agency. So this comes under, we can say, in the governance part. तो हम इसको ई गवर्नेंस के अंडर पुट कर सकते हैं, GS2 के सिलेबस में। इस प्रोजेक्ट के बारे में छोटी मोटी डिटेल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल कौन लॉन्च करता है, किसके अंडर में आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। ये करता क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसके लिए सिमिलर एक जो इन्फॉर्मेशन है PIB की मैं शेयर करता हूँ। इसमें यहाँ पर मेंशन है कि इट इनेबल्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस एंड हैज सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर चार बेनिफिट्स दे रखे हैं। ईज ऑफ एक्सेस एंड स्पीडी सर्विस डिलीवरी, जो हम गवर्नेंस का एक एज ए टारगेट भी रखते हैं इसको हमेशा, ईज ऑफ सर्विस डिलीवरी, और फिर बोल सकते हैं स्पीडी सर्विस डिलीवरी with improved quality, single source of truth and data consistency, eco-friendly process and cost optimization, and then security and optimization of infrastructure for greater agility. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, जो हम यूज कर सकते हैं। आंसर्स में ये कीवर्ड्स यूज किए जा सकते हैं इन मेंस ऑल्सो। तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन है जो पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें यहाँ पर एक डाटा मेंशन है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, अबाउट 78 करोड़ पेन्स हैव बीन इशूड, ऑफ विच 98% आर टू इंडिविजुअल्स। तो ये कहीं यूज होता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगेन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पे भी फोकस करना है, ये सब उसी का पार्ट है जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, टू फॉर एग्जाम्पल मेक कॉमन पॉइंट्स फॉर और बिजनेस प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका आज का रहेगा, सेकेंड आर्टिकल फ्रॉम द सेम न्यूज़पेपर, here you can see it is regarding Atal Innovation Mission. Cabinet approves the next phase of this Atal mission. The Union Cabinet recently approved the continuation of the Atal Innovation Mission, which is implemented by Niti Aayog. तो अटल इनोवेशन मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि नीति आयोग है यहाँ पर। क्या करने, क्या इसका टारगेट होने वाला है। सो दिस फेज ऑफ AIM इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर इनहेंस द इंडियाज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस in the innovation ecosystem, and the continuation of AIM will directly contribute to creating better jobs, innovative products and high impact service across sectors. तो अल्टीमेटली हम इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इनोवेशन प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको हम ग्राउंड पे इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो
या फिर उसको हम स्केल कर सकते हैं कोई भी इनोवेशन को। तो ये इसका स्टार्टिंग इनोवेशन से ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है उस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए, ये अटल इनोवेशन मिशन। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ये कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो पहले इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पुट कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, 2019 के प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर दी, चार ऑप्शंस दे रखे हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग, जैसा अभी हमने देखा। तो इस टाइप से जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये कौन लॉन्च करता है, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, नाउ आई इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। Thank you, sir. So there is one article to be shared with you all. This article particularly pertains to your section of science and technology, space technology, in सबसे related है. So news is that one observatory has been set up in Ladakh. The name is like Major Atmospheric Chernobyl Experiment. उसको मेस कहा जाता है, और ये लद्दाख के हेनले में इसको सेटअप किया गया है। और दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। इट इज द हाईएस्ट इमेजिंग चरखनोव टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट है ऑफ इट्स काइंड इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये तो फैक्ट हो गया। और एग्जैक्टली हु कंट्रीब्यूट किस किसने किया है इसको बनाने के लिए, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, टीआईएफआर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और दो तीन इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है। देन थिंग इज दैट व्हाई वी नीड this telescope and why in this particular location. This is an important information that we can know from this article. So this is that this uh, जो ये टेलीस्कोप है कैन हेल्प अस नो अबाउट द आर गैलेक्सीज। जो कुछ इवेंट होते हैं जैसे सुपरनोवा इवेंट है, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में, इन सब के बारे में हमको ये बता सकता है। बिकॉज जब ये न्यूट्रॉन स्टार वगैरह बर्स्ट करते हैं, सुपरनोवा बर्स्ट करता है, तो इट इमिट गामा रेडिएशन, एंड दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी जो है ये गामा रेडिएशन को ही ये डिटेक्ट करते हैं। तो बाय इनडायरेक्टली इट कैन टेल अस अबाउट द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन से लेकर हर कुछ के बारे में बता सकते हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू नो फॉर मेनी मेनी ईयर्स। ठीक है, तो लाइट कम्स इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, बट ह्यूमंस वी ऑल नो दैट विजिबल रेंज में ही देख सकते हैं। एंड गामा रे हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट एनर्जी है। इसीलिए हाईएस्ट एनर्जी है तो वो डिस्टेंट इवेंट भी हो रहा है, डिस्टेंट यूनिवर्स में भी हो रहा है, बिकॉज इट हैज अ हाईएस्ट एनर्जी इट रीचेस आउट विदाउट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, एंड थिंग इज गामा रे को कौन कौन से इवेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो गामा रे इंक्लूडिंग पल्सर्स के बारे में आप जानिए, सुपरनेवा के बारे में जानिए, कर्सर्स के बारे में जानिए, ब्लैक होल्स, ये सब जो सोर्सेस ही इमिट करते हैं गामा रेडिएशन को। ठीक है, तो बाय नोइंग हम गामा रेडिएशन का इस तरह के सोर्सेस से जो गामा रेडिएशन आ रहा है, एंड इफ यू डिटेक्ट देम वी कैन नो अबाउट दीज सॉर्ट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एंड देन थिंग इज दैट व्हाई इट इज लाइक पर्टिकुलरली ये जो एरिया है यहीं पे क्यों सेटअप किया गया है। बिकॉज ये जो एरिया है, आप जानते हैं कि जब कहीं से लाइट आता है या गामा रे आता है, तो दे गेट लाइक हमारे जो लोअर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में जो एक तरह से आप जो लाइट आता है वो वेरियस पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है और डिस्पर्स हो जाता है इन मेनी डायरेक्शन। जस्ट बिकॉज इट इज इन लाइक high altitude location puts the telescope about the disturbance in the lower reaches of the troposphere। इसीलिए एक आइडियल लोकेशन है वहां पे पुट करने के लिए कि जो डिस्टर्बेंसेस एटमोस्फेरिक जो एक तरह से डिस्टर्बेंसेस होगा उसको निगेट कर देगा। ठीक है, एंड देन थिंग ये इसमें बताया गया कि ये कैसे काम करेगा। ये हनीकॉम टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, दैट एक तरह से इसका एक तरह से लाइट कलेक्टर है, कैमरा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके रिलेटेड। एंड मेन स्टडी आप मैंने बताया कि गामा रे के बारे में है। एक अलग उसका और भी स्टडी है, वो है डार्क मैटर के बारे में जानने के लिए। वी ऑल नो आवर यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर मेनली एक्चुअली अट्रैक्शन पुल फोर्स करता है गैलेक्सीज के लिए, एंड डार्क एनर्जी इज लाइक पुशिंग इट द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे क्या डिफरेंस है ये स्टूडेंट जाने। एंड वन ऑफ द proposed particle constituent of dark मैटर जो बता रहा है, ये वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल विम्स के बारे में बता रहे हैं। इसको स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। एंड दिस इज लाइक
व्हाट दिस मेस विल डू इन द लाइक इंडिया का जो इंडेवर है अपने अपने स्पेस साइंस में, इसके लिए क्या करेगा। तो प्रीवियस टेलीस्कोप ने हमें हेल्प किया मेजर द हाई एनर्जी गामा रे प्रोड्यूस बाय विम्स। दिस विल अलाउ एस्ट्रोनॉमर्स टू लर्न मोर अबाउट डार्क मैटर और बिहेवियर ऑफ द विम्स। तो ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो स्टूडेंट जाने, क्योंकि वी ऑल नो कि प्रीलिम्स में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी से पर्टिकुलरली फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई विल इनवाइट मनीष सर टू कैरी फॉरवर्ड दिस डिस्कशन। थैंक यू। I have one article and it is related to GS पेपर 2, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक आया जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 42nd उसको इन्होंने अपहेल्ड किया है और जो पेटिशन था उसको डिसमिस किया है। तो दिस आर्टिकल है सम बेसिक टेक अवे, 4 और 5 टेक अवे है जो इस पे हम ध्यान देंगे। The first thing is related to the constitutional validity of Article 40 and Constitutional Amendment 42nd। तो जैसे हम जानते हैं कि दिस अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इन दिस अमेंडमेंट लार्ज स्केल चेंज टुक प्लेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी डे ऑफ 1976। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है और इसी के थ्रू हम सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में लाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एक्सटेंड टू द प्रियम्बल और बिकॉज ऑफ दैट ये जो चेंजेज हुआ, जो अमेंडमेंट हुआ प्रियम्बल में आ गई, ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड आया, ये वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। दूसरा इसमें ऑब्जर्वेशन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ये जो लिविंग डॉक्यूमेंट है इट इज डिजाइंड और इट इज फ्रेम्ड इन ए वे सो दैट इट कैन इनकॉर्पोरेट द सोशल चेंजेस और चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। और फॉर दैट आर्टिकल 368 इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरा ये टेक अवे है। और तीसरा फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जो बात करें हम, तो इंडिया की जो सेकुलरिज्म की बात कर, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट का बात करें तो इस पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये इम्फेसाइज किया कि इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म, जहां पे स्टेट नीदर सपोर्ट्स एनी रिलीजन नॉर पिनलाइज द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एनी फेथ। और कहीं ना कहीं ये जो इंडियन इंटरप्रिटेशन है सेकुलरिज्म का, इट्स प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14, 15 और 16 के जो वैल्यूज है उसको कहीं ना कहीं ये दिखाता है। फिर यहाँ पे एक चौथा टेक अवे आता है कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम जैसे इन जनरल वी नो कि व्हेन वी टॉक अबाउट सेकुलरिज्म वी जनरली कंसीडर इज वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है कि यस इंडिया इज फॉलोइंग ए सेकुलरिज्म पॉलिटी, हाउएवर द सेकुलरिज्म इज नॉट creating a kind of problem for economic development in our country। तो सेकुलरिज्म है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल, बट यस देयर इज नो hurdle to the economic planning or economic development of the country because of this secularism character। तो उसके बाद से यहाँ पे एक केस की बात की गई है जिसमें प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं। इसका जो वर्डिक्ट था तो इसमें क्या था, अलाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू अडॉप्ट ए स्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक गवर्नेंस विच वुड सबसर्व द पॉलिसी फॉर विच इट इज अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट्स। अगर पहले कुछ ऐसा पॉलिसी बनाया उसको सबसर्व कर सकती है इन ऑर्डर टू अचीव सम सॉर्ट ऑफ पार्टिकुलर गोल्स इन द फ्यूचर। तो इस पे इस केस का जजमेंट था। उसके साथ साथ फिर यहाँ पे इस आर्टिकल में 44 जो अमेंडमेंट एक्ट 1978 78 था, इसकी भी बात की जा रही है। तो इन ब्रीफ जो जो क्रिटिसिज्म हुआ था अमेंडमेंट जो 42nd अमेंडमेंट्स का, तो नई गवर्नमेंट आई तो उसने उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन किया, कुछ चेंजेस किया। और जो बहुत लार्ज स्केल पे एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा पावर का डिवीजन था उसमें चेंजेस हुए थे, तो उसको कहीं ना कहीं फिर से रिकरेक्ट किया गया थ्रू 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी आया था फंडामेंटल ड्यूटी का जो सिटीजन्स के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स को इस 44 जो अमेंडमेंट एक्ट है इसको देखना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस स्मॉल आर्टिकल।
प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट और आपका जो दोनों सोशलिस्ट का। along with that 42nd अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है, 44 अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है। मेंस में आप इसको अकॉर्डिंगली एज पर नीड यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू ऑल।